term you should know about atomic number, and this you are very well aware what is atomic number, what is mass number. Okay, what is atomic number? It is number of proton, or we can say electron. More precisely we say number of protons. As electron participate in the reaction, it can be transferred, gain, lose. In the neutral atom we say as electron, but in the cation or anion we can't say as electron, we say as number of proton. And you know atomic number is denoted as Z. ठीक. So mass number is consisting of the mass is basically in the nucleus itself, so number of proton plus number of electrons. Okay, so this is a mass number. Again you have done in class 9th. ठीक है बेटे. To where it is written in the symbol of an element, mass number is written here and atomic number is written here. We are very well aware of that. ठीक है, what are mass number and what are atomic number. So we have done another thing, that is isotopes, isobars, and one thing new is coming to you, that is isotones. So what were isotopes, है ना. तो isotopes क्या थे? We have done when we have done average atomic mass also, chlorine isotopes. तो isotopes में क्या होता है? तो I used to say you कि आपने ये जो लिखना है कि atoms of the same element, these are atoms of the same element. तो इनका same क्या होगा? They have same atomic number. Just to recall it, okay, different mass number. Okay, these are isotopes. There are element of the atoms of the same element, like chlorine we are doing. We have taken average atomic mass also. So this is not new to you, है ना. So isobars we have done also. Isobars in isobar we take atoms of different elements, not the same elements. We used to take atoms of different element that have same mass number. Now mass number will be same, and what is different atomic number. So we usually take the example of, you if you will still remember, that calcium and argon we used to take, है ना. तो you used to write argon and calcium having 40, this is 18, this is 20. So as we can take potassium also. Wait, ठीक है. तो दिस वॉज आवर आइसोबार्स. नाउ व्हाट आर आइसोटोन्स? टोन्स की नेम से पता चल रहा है बेटे न्यूट्रॉन सेम होगा. एन आइसोटोन्स, isotones, because there is n same. So these are atom of different element again, which have same number of neutrons. Now neutrons will be same, मगर again these are atoms of different element, not the same. Same सिर्फ isotopes में होते थे. Same atom of same element, like we have taken hydrogen. So if you remember protium, deuterium, जो हमने हाइड्रोजन की बात करी थी, है ना. तो एक ही एलिमेंट के एटम्स की बात करते हैं आइसोटॉप्स में. आइसोबार्स और आइसोटोन्स में हम डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम की बात करते हैं. तो आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन सेम होते हैं. तो लाइक कार्बन you have, one is nitrogen, one is your oxygen you are having. These are different element having 6, 7 and 8. 6, 7 and 8 atomic number, and their mass number is 14, 15 and 16. ठीक है. अगर हम 14 क्या होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही होते हैं. अगर हमें प्रोटॉन 6 हैं, अगर हमें प्रोटॉन 6 हैं तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 14 minus 6, तो it will be 8. So here it is 8 neutron.
Same 15 minus 7 is 8. Same 16 minus 8 is 8. So number of neutron will be same in this kind of species. Okay, bete? So number of neutron is same in the isotones. I'll give you the extra exercise to do it. I'm starting with electromagnetic theory, electromagnetic radiation. अब electromagnetic radiation, if you want to do, first understand what are these radiation and what does it comprises of. Okay. So this electromagnetic radiation will do wave nature of this radiation. What is a wave? Wave is any disturbance in the medium. ठीक है, अगर हम वेव की बात करें, जनरली हम वेव की बात क्या करते हैं, वेट, तो तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पहले समझ। सो बेटे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं किसी, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग द स्पीशीज नाउ विच हैव 10 इलेक्ट्रॉन ईच, ठीक। फॉर एग्जाम्पल नियॉन, नियॉन इज अ न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे, 10 होंगे, है ना। अगर मैं Na पॉजिटिव ले लूँ जो कि केटाइन है, जो कि क्या है, केटाइन है, वो कैसे बना, Na में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो कितने बचेंगे, 10, तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है। This also consists of 10 electrons. Then again, if I am talking about बेटे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैग्नीशियम में there are total 12 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं, तो इसके अंदर भी कितने रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके अंदर भी कितने रह गए बेटे जी, 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो एज एल्यूमिनियम, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एल्यूमिनियम, aluminium 3 positive, how many electrons are in aluminium 3 positive? In aluminium we know there are 13 electrons, and if aluminium 3 positive is having 3 positive charge, it means it has lost 3 electrons. Now remaining electron are 10 electrons. Okay bete, likewise if I am writing O2 negative, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव में ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। अगर मैंने 2 नेगेटिव लिखा है तो इसका मतलब इसने 2 गेन करे हुए हैं, तो इसमें भी क्या होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं बोलती हूँ बेटे N3 नेगेटिव, तो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसने 3 गेन कर दिए, तो इसके पास भी कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके ओके बेटे, तो लाइक वाई एफ नेगेटिव, इफ आई एम हैविंग एफ नेगेटिव, एफ नेगेटिव के पास 9, फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन है, ओके, इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द 10 इलेक्ट्रॉन्स। Okay bete, so these are isoelectronic. Isoelectronic species are those, we are not saying atoms, we are not saying ions, they are species, रिमेंबर फर्स्ट, ठीक है बेटे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक हमेशा स्पीशीज इसलिए कहते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में एटम्स भी आ जाते हैं, केटाइंस भी आ जाते हैं और एनाइंस भी आ जाते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि दीज आर एटम्स, दीज आर आयंस, we used to say isoelectronics are the species which have same number of electrons. And you will be doing in the next chapter, the question comes like this, what are these species arranged in the order of increasing atomic size or decreasing atomic size. तो in the next chapter we will do like कैसे आप अरेंज करोगे। फॉर एग्जाम्पल केटाइन का साइज हमेशा छोटा होगा और जितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए होंगे किसी से, जैसे एल्युमिनियम है, सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, चला सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके बेटे। मगर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 13 प्रोटॉन है, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा है।
तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा होगा मगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे, उसका साइज छोटा हो जाएगा. So when we'll doing atomic radii in the next chapter, I will make you more clear about this concept. Till there you understand what are isoelectronic, the species which consist of same number of electrons. Means following example is a isoelectronic species which consists of neon, Na positive, Mg2 positive, Al3 positive, O2 negative I have taken example, F negative I have taken example, any of example you can take. Okay, any of example it can come. Clear bete? Okay, clear to you everyone. So let us start now. Electromagnetic radiation, its wave nature. So let us start with the wave nature of electromagnetic radiation. Wait. Okay. So let us start with the wave nature of electromagnetic radiation. So what is wave? पहले हम वेव की बात कर लें. साउंड वेव्स आपने पढ़ी है ना. क्यों होती है साउंड वेव? क्योंकि मीडियम में डिस्टर्बेंस होती है. कोई भी वेव्स क्यों होती हैं? क्योंकि जब आप किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस करते हो, वो मीडियम में हिलते हैं. फॉर एग्जांपल जब आप वाटर में स्टोन डालते हो तब भी वहाँ पे वेव्स बनती हैं. जब आप बोलते हो तो एक आपके फ्रेंड को आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है क्योंकि इस एयर मीडियम में डिस्टर्बेंस हो रही है. तो वेव हम जनरली क्या कहते हैं? एनी डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम. मगर व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो रेडिएशन है, अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये, अगर मैं सबसे ईजी एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बनाऊँ, जो सन से एनर्जी आ रही है हमें, इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो सन से हमें एनर्जी मिल रही है. हम कहते हैं जी आजकल ओजोन लेयर ख़त्म हो गई है क्योंकि जो यूवी रेज है वो जो सन से आ रही हैं हमारी स्किन को डैमेज कर रही है ना. लाइकवाइज देयर इज़ IR, देयर इंफ्रारेड हो जाती है, रेडियो वेव्स दे आर कमिंग जैसे कॉस्मिक. और हमें नज़र क्या आती है? what our eye can perceive from these all electromagnetic radiation, only and only our eyes can perceive बेटे visible reason, जो हमें दिखता है. इसको कहते हैं विबग्योर. हम स्मॉल क्लासेस में प्रिज्म में से पास करते थे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होती थी तो हमें 7 कलर्स नज़र आते थे. वो विजिबल जो पोर्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो हमारी आइज़ परसीव कर सकती हैं, हम देख सकते हैं. अदरवाइज ये नहीं है अकेली की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में visible ही है. It consists of all the radiations coming to us. Okay, all the radiation coming to us. ठीक. तो पहले तो सिर्फ लाइट की ही डिस्कवरी हुई थी. तो लाइट में ये जो पार्टिकल्स आते थे, जो पार्टिकल्स की फॉर्म में, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स की फॉर्म में लाइट आती थी, जिसको कहते थे कॉर्पसल्स ऑफ लाइट आ रहे हैं. ठीक. मगर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल बंदा आया, उसने हमें ये आके बताया कि जी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसमें एनर्जी कॉन्टीन्यूसली होती है. ये जो टर्म बोली ना बेटे कॉन्टीन्यूसली, ये ध्यान से समझो, इसको हम फेल करेंगे आगे. ठीक है. जो ये जेम्स क्लर्क मैक्सवेल आया, कहता कोई भी जो रेडिएशन आ रही है ना सन से तो सारी रेडिएशन आ रही है. जैसे माइक्रोवेव में सिर्फ माइक्रोवेव की रेडिएशन है. अगर आप आपका चैनल चेंज कर रहे हो, टीवी के रिमोट से वर्क कर रहे हो, तो इंफ्रारेड रेडिएशन जा रही हैं. मगर ये ऐसा सोर्स है जो हर टाइप की रेडिएशन हमें दे रहा है. ठीक है. तो ये जो मैक्सवेल ने कहा, जो हमें रेडिएशन आ रही हैं, द रेडिएशन विच आर कमिंग टू अस, दे आर कॉन्टिन्यूसली कमिंग. ठीक. दे आर द रेडिएशन विच आर कमिंग टू अस, द रेडिएशन आर कमिंग कॉन्टीन्यूसली. वेरी इंपॉर्टेंट, यही हम फेल करेंगे आगे. कमिंग कॉन्टीन्यूसली. देन क्वांटम कहेगी डिसकॉन्टीन्यूस. ओके. कॉन्टीन्यूसली इन द फॉर्म एंड
और वेव्स, जब वेव्स आती हैं तो कॉन्टिन्यूसली आती हैं, ब्रेक करके तो नहीं आती, तो हम कहेंगे वेव्स। इसी वेव को कहेंगे हम एनर्जी, और इस एनर्जी को नाम दे देंगे रेडिएंट एनर्जी। ठीक है बेटे, हम ये बोलेंगे जो रेडिएशन आ रही हैं वो कॉन्टिन्यूसली आ रही हैं, किस फॉर्म में, वेव्स में, एंड इनमें एनर्जी है, कौन सी है बेटे, दैट इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। ओके, अब जो रेडिएशन आ रही है, मुझे सन से रेडिएशन आई, हम जो वेव्स आगे पीछे बढ़ते हैं, वी आर सेइंग वेव्स की बात करते हैं, जैसे साउंड वेव्स है ना, वी हैव टॉक्ड इन द जूनियर क्लासेस, ऑल द वेव्स नीड मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। अब सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है बेटे, दे डोंट नीड एनी मीडियम। ये नहीं, अगर एयर होगी तभी वो हमारे पास पहुंचेंगे। जैसे लाइट है, light is a part of electromagnetic radiation and we know that they can travel in vacuum, they don't need any medium, ठीक है, and they are emitted continuously in the form of radiation or wave. So what are the properties, if you want to write what are the properties of electromagnetic radiation, these emit energy continuously, you can write these emit energy continuously. I am saying it is very important, continuously in the form of radiation. जो ये electromagnetic waves आ रही हैं, these electromagnetic waves, ये जो आ रही हैं एनर्जी कॉन्टीन्यूस आ रही है, चाहे लाइट है, चाहे एक्सरेज हैं, चाहे माइक्रोवेव्स हैं, ये हमें बेटे कॉन्टीन्यूसली आ रही हैं और इनको मीडियम भी नहीं चाहिए प्रोपोगेट होने का। गेटिंग माई पॉइंट। अब जब ये वेव्स आती हैं, जब ये वेव्स आती हैं तो इनमें दोनों कंपोनेंट होते हैं। अभी समझो कि हमने जूनियर क्लासेस में एक मैग्नेटिक फील्ड की, एक हम अगर इलेक्ट्रॉन है ना बेटे, ये इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, स्पिन करता है ना, स्पिन, कोई भी चार्ज स्पेस स्पिन करती है तो इसकी अपनी फील्ड क्रिएट होती है ना, तो ये जो फील्ड क्रिएट होती है तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि अब कोई मैग्नेट है आपका तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं कई मेटल्स में, जैसे आयरन के मेटल्स में उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। कोई चीज़ है जिसके पास जाके दूसरी चीज़ अट्रैक्शन फील्ड करे, अट्रैक्शन, जैसे कि आयरन है, अगर जैसे कि आप फॉर एग्जांपल इन द जूनियर क्लासेस यू आर डूइंग दिस इज अ मैग्नेट, दिस इज अदर मैग्नेट, तो इसकी फील्ड में आप कुछ प्लेस कर दो तो ये इसकी फील्ड है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इन द सेम वे अगर कोई आप चार्ज स्पीशीज ले आओ, कोई भी प्लस चार्ज वाली स्पीशीज है, तो अगर आप नेगेटिव चार्ज वाली पास में लेके आओगे तो इसकी एक पॉजिटिव फील्ड क्रिएट हो जाएगी कि ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी। अब जो ये वेव्स आती हैं, वेव्स अपनी वेव तो हैं, इसके साथ इनके पास दो कंपोनेंट है, एक मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट और एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है। अब ये जो दोनों कंपोनेंट है, जैसे ये वेव्स आई, ये वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई, उसके साथ इसके दो और कंपोनेंट आते हैं, कौन कौन से, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करते हैं और तभी तो हमारे इतने मोबाइल्स चल रहे हैं, इतने रिमोट कंट्रोल चल रहे हैं, माइक्रोवेव चल रहा है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स हैं इनमें। ठीक है, तो ये वेव है, अगर वेव इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है बेटे, तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड द वेव इज प्रोपोगेटिंग, ठीक है, अब इसके दो कंपोनेंट्स और हैं, वन इज मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। वेव, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोफील्ड कंपोनेंट, तीनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं,
तीनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो हम क्या बोलेंगे सेकंड पॉइंट में, द रेडिएशन आर एसोसिएटेड, ये जो रेडिएशन आ रही हैं आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक, राइट डाउन बेटे, दी आप इस डायग्राम से समझो, राइट डाउन करो, ओके। The radiation are associated with electric and magnetic field. So these are electric and magnetic field. Okay? तो अगर मैं ऐसे, अगर इसका परपेंडिकुलर बनाने की कोशिश करूं, कुछ ऐसे बनाऊंगी मैं, ठीक है। और ये अगर ये मैं मानूं एक है, तो ये मेरी वेव है, ये मानो मेरी वेव जा रही है, और ये दो कंपोनेंट जा रहे हैं, तो ये एक कंपोनेंट इस तरफ जा रहा है, ये बोर्ड के बाहर आ रहा है, ठीक है। और ए कंपोनेंट ऐसे, तीनों तभी परपेंडिकुलर होंगे। तो देखो, रेडिएशन एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच ऑसिलेट कर रही हैं, चल रही हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों जो है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड ऑल्सो इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन in which the radiation propagate. If the radiation is propagating this direction, so magnetic and electric field जो component है वो भी oscillate करेंगे, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और इवन परपेंडिकुलर होंगे जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट बेटे? क्लियर टू यू? क्लियर टू यू? Second point you have written, all of you. अब थर्ड पॉइंट देखो, सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस वेलोसिटी से मूव करती हैं? इट मूव बाय वेलोसिटी ऑफ द लाइट, इट मूव बाय द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। वो वेलोसिटी कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैंने क्या बोला था कि आप बचपन में ही करते आ रहे हो कि लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए। अगर ये लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट है, अगर लाइट को नहीं मीडियम चाहिए ना, इनको भी कोई मीडियम नहीं चाहिए। दे डोंट नीड अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, ठीक है बेटे? दे डोंट नीड अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, ओके। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये थी इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स। अब सर्टेन जो हम कह सकते हैं टर्म्स हैं, इनकी करेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए बनी है। दैट इज़ वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेव नंबर। और इससे आपको पता चलेगा कि सब की स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल क्यों है, सबकी वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल क्यों है। लेट अस टेक फर्स्ट बेटे the term that is called wavelength, and you have done in physics also. So wavelength, that is called lambda, wavelength that is called lambda। तो wavelength, अब हमारी जो वेव है वो ऐसे ट्रेवल करती है बेटे, ओके। तो ऐसे ट्रेवल करती है, तो ये क्या बनाती है? जो ऊपर बनता है उसे कहते हैं क्रस्ट, यू हैव डन इन फिजिक्स। और जो नीचे बनता है दैट इज ट्रफ, ओके। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोपोगेट इन क्रस्ट एंड ट्रफ्स। अब इनमें जो डिस्टेंस होते हैं दो एडजेसेंट क्रस्ट में या दो एडजेसेंट ट्रफ में जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंजक्टिव क्रस्ट और ट्रफ्ट, ठीक। तो इसको कैसे मेजर करते हैं? एमस्ट्रॉन्ग में वी हैव डन, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 एमस्ट्रॉन्ग वी हैव डन दैट इज 10⁻⁻10 मीटर्स, और 1 पाइकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर्स, okay bete। and 1 nanometer, this we have done in class 9th also, 10⁻9 meters। so these are the units of wavelength। length meters में ही होगी, और क्योंकि ये बहुत छोटी चीज़ है
तो हम एमस्ट्रॉन्ग्स में लेंगे, पाइकोमीटर्स में लेंगे या नैनोमीटर में लेंगे, फर्दर इसको मीटर्स में चेंज करेंगे। फिर बात करूं बेटे एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड ठीक है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड होता है ये, दिस इज एम्पलीट्यूड। सो हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज अ हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ, ठीक है। तो हाइट किस में मेजर करते हैं, ये भी लेंथ पे मेजर करते हैं, तो इसके भी यूनिट सेम हो जाते हैं, ठीक है बेटे। फ्रीक्वेंसी, तो ये दिस यू हैव बीन डूइंग फ्रॉम द जूनियर क्लासेस, ऑल द again we are repeating. So frequency, what is frequency? Is the number of wavelength which pass through a point in 1 second. 1 second, ये एक पॉइंट बना दूं और 1 सेकेंड में इस पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो रही हैं, वो फ्रीक्वेंसी है। जितनी ज़्यादा वेव पास होंगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो है वो वेव बहुत ऐसे से पास हो रही है, ऐसे 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 ऐसे। इसका मतलब इसकी क्या कम हो रही है, वेवलेंथ, इन दोनों में डिफरेंस था। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फटाफट भागेगी तो ऐसे भागेगी, तो इन दोनों में डिफरेंस कम हो जाएगा, तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यहाँ से ये भी समझो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इन दोनों में जो है डिस्टेंस है। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो इट विल बी मूविंग लाइक दिस 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 दिस। इफ इट विल मूविंग लाइक दिस, तो इन दोनों में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। फ्रीक्वेंसी क्या है, इज अ नंबर ऑफ वेवलेंथ विच पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, ठीक है। और इसको कैसे मेजर करते हैं, साइकिल्स पर सेकेंड, और नोन एज हर्ट्स, वी नो इट, we have also done this. Now velocity, you have already covered. Velocity of a wave is linear distance travel by wave in 1 second. कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है एक वेव, लीनियर डिस्टेंस, वो क्या जाती है इसकी वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट टर्म इज बेटे वेव नंबर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म टू बी यूज्ड इन द न्यूमेरिकल अगेन, वेव नंबर। तो वेलोसिटी को हम c से बताते हैं, वेव नंबर को इससे बताते हैं। फ्रीक्वेंसी यू नो इट इज टर्म एज न्यू, है ना, न्यू से बताई जाती है। तो व्हाट इज वेव नंबर, इज अ नंबर ऑफ वेवलेंथ विच कैन अकोमोडेट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है। वेव नंबर क्या है, कितनी, और